अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू द जेंडर स्टडीज लेक्चर सीरीज ऑन नेयर पेयर। और आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करेंगे जो कि पास्ट पेपर में भी बहुत दफा आ चुका है और इसने दोबारा भी बहुत दफा एग्जाम्स में आना है। वो है सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ जेंडर। आई वुड लाइक टू मेंशन हियर दैट वी आर डूइंग सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ जेंडर हियर फर्स्ट rather than the difference between women studies and gender studies for pedagogical purposes. मैंने इस तरीके से सिलेबस को रीशफल और रीअरेंज करना है ताकि आप लोगों के लिए समझना भी आसान हो और इसको अटेम्प्ट करना आसान हो। जब हम पहले कोर्स कवर करेंगे जेंडर स्टडीज का और एंड पे आके करेंगे कि जेंडर स्टडीज और वुमेन स्टडीज में क्या फर्क है, तो वो आपके लिए समझना भी आसान होगा और उसको अटेम्प्ट करना भी आसान होगा। सो व्हाइल वी विल बी कवरिंग द होल कोर्स, I will be constantly shuffling and rearranging the whole course and अपनी lecture series को इस तरीके से डिजाइन करेंगे ताकि आपके लिए समझना आसान हो। So let's quickly jump to the topic. इसमें एक सबसे important चीज ये है कि the context of this whole concept of social construction of gender operates in a nature versus nurture debate. Again, this is something जो कि past paper में सवाल पूछा जा चुका है, which you can refer to. The nature versus nurture debate, as the name suggests, is that कि इंसानों में broadly speaking, not restricting to gender, but generally speaking, nature versus nurture debate ये कहती है, जो proponents हैं nature argument के, वो ये कहते हैं कि इंसान का behavior जो है वो innate होता है। How a person and human being acts in a society is determined by his biological factors, his genetic makeup, उसने क्या अंदर से उसके सारे chemical forces हैं, and society no way influences or impacts a person's behavior. The nurture argument, on the other hand, argues that इंसान का जितना behavior है वो प्री रिटन नहीं है, प्री वायरिंग नहीं हुई हुई उसकी, बल्कि वो लर्नड बिहेवियर है। वो दुनिया में आकर बचपन से लेकर अपनी मौत तक जो वो चीजें सीखता है, जिन एक्सपीरियंस से गुजरता है, जो एजुकेशन हासिल करता है, जिन जगहों पे जाता है, जो उसके साथ पर्सनल एक्सपीरियंसेस होते हैं, उनकी बेसिस पे वो लर्न करता है। इसीलिए इट्स कॉल्ड नर्चर, नर्चरिंग समथिंग, डेवलपिंग समथिंग। So this is the larger nature versus nurture debate. तो जिसकी एक for instance that there are certain studies that show that we inherit genes that are related to certain personality traits, कि आपको गुस्सा ज्यादा आता है या आप generally cool headed हो, this is largely determinant of your genetic traits, but sometimes we found that identical twins grow to develop very different personalities, हालांकि both have inherited very similar genetic makeup. So इसके ऊपर जो evidence है empirical, that is divided. So it's some studies favor the nurture argument, some favor the nurture argument. So over the course of time, modern scientists या modern theories के ऊपर accepts a bit of both, that there are certain nature factors, nature related factors, and a lot of nurture related factors. So nurturing happens as a top layer beneath this overarching nature of human beings. इसके कॉन्टेक्स्ट में अगर हम सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ जेंडर की बात करें, तो सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ जेंडर की थ्योरी का फंडामेंटल प्रेमिस या बेसिक आइडिया ये है, इट प्लेसेस इटसेल्फ लार्जली इन द नर्चर सेक्शन। इट माइट वांट टू एक्सेप्ट कि ठीक है कुछ चीजें होंगी नेचर से, लेकिन ब्रॉडली स्पीकिंग जो इंसान के जेंडर रोल्स हैं, अगेन रिफर बैक टू द फर्स्ट लेक्चर, सो कि जिसमें हमने डिफाइन किए थे कि जो जेंडर रोल्स हैं कि what are the appropriate behavior prescribed to each particular sex, वो सोसाइटी और कल्चर बनाते हैं, और सोसाइटी और कल्चर उनको डिफरेंट तरीके से फिर इन्फ्लुएंस करते हैं और इम्पैक्ट करते हैं और एस्टैब्लिश करते हैं। सो बहुत ज्यादा लोगों ने इसके ऊपर लिखा है, बहुत ज्यादा इसके ऊपर डिस्कशन हुई है कि हाउ के while biological factors may play some part, but broadly speaking जो societal convention है, social rules हैं, social institutions हैं, education, religion, mass media, advertisement, ये सारे influence करते हैं in developing men and women into completely two distinct personalities या two different जो उनसे behaviors expect किए जाते हैं. Now let's quickly go on to the theories which relate to this concept. So I've broadly categorized the theories of social construction of gender into three categories. The first is the theory of historicism, which argues कि तारीख में कुछ ऐसे historical events हुए हैं जिनकी वजह से उन historical events की culmination की वजह से ये gender roles develop हुए. The second is ethnomethodology and symbolic interactionism. Don't get scared by the name. People who have no relation to this jargon पहले जिंदगी में, लेकिन दिस अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट. इट्स द आइडिया कि कैसे सोसाइटी ट्रेन करती है लोगों को टू एक्ट इन अ सर्टेन वे. द थर्ड इज द थ्योरी ऑफ मटेरियल डिपेंडेंस.
So now the first theory which is of historicism, इस theory के मुताबिक कुछ specific historical events कुछ systems और ideas और institutions को जन्म देते हैं. जब हम बात करते हैं खास तौर पे जेंडर रोल की, तो इसमें again I will be using a lot of references of different books and different authors लिखना ब्लैक पॉइंटेड से इन रेफरेंसेस को, ताकि आप एग्जामिनर को ये दिखा सकें कि आपने मेहनत की है या आपको सब्जेक्ट पे कमांड है. सो यू वुड नॉट हैव टू रीड एनी एक्स्ट्रा बुक, एनी एडिशनल बुक. मैं रेफरेंसिंग करके आपको उसकी समरीज आइडियाज की बीच में साथ साथ हर क्वेश्चन में हर टॉपिक में करवाता जाऊंगा. सो इट्स गोइंग टू बी वेरी इजी फॉर यू टू जस्ट कॉपी पेस्ट दैट एंड गेट गुड स्कोर. सो गर्डा लर्नर की थ्योरी, जो कि उसकी किताब द क्रिएशन ऑफ पेट्रियार्की में, वो ये कहती है कि जो सिस्टम ऑफ मेल डोमिनेंस है, दिस वाज क्रिएटेड एट अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड इन हिस्ट्री व्हिच इन्वॉल्व्ड कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस ऑफ इंटरैक्शंस. द सीक्वेंस इज कि इंसान पहले हंटर गैदरर सोसाइटीज में रहता था. दिस इज प्रायर टू एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन के, जब इंसान ने एग्रीकल्चर भी डेवलप नहीं की थी तो हंटिंग और गैदरिंग की जाती थी. आहिस्ता आहिस्ता जो हर्डर ट्राइब्स थे, जिसमें आप यानी कि हंटर गैदर ट्राइब्स थे जो कि घूमते रहते थे इन सर्च ऑफ फूड, उन्होंने सबसे पहले आहिस्ता आहिस्ता एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करना सीखा. सो एनिमल्स जब डोमेस्टिकेट होना शुरू हुए तो इसकी वजह से फिर मर्दों को औरतों की रिप्रोडक्टिव फैकल्टीज की इंपॉर्टेंस समझ आई. बिकॉज सबसे पहले जब प्राइवेट प्रॉपर्टी का नोशन डेवलप हो गया इन एनिमल्स की डोमेस्टिकेशन की वजह से. सो जब एनिमल्स डोमेस्टिकेट इंसान ने करना शुरू कर दिए तो इतनी भैंसें, इतना आपका जो है बफलो, दे बिकेम योर ओन. सो योर एनिमल्स बिकेम योर प्राइवेट प्रॉपर्टी. जब प्राइवेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ ओनरशिप ऑफ हर्ड्स की वजह से, तो इंसान के अंदर, मर्द के अंदर इन पर्टिकुलर, ये जस्तजू हुई कि मेरी प्राइवेट प्रॉपर्टी, मेरी प्रोजेनी, मेरे बच्चों में ही जानी चाहिए. तो चूंकि मेरी प्रोजेनी सिर्फ मेरे बच्चों में जानी चाहिए, इसलिए औरत की चैस्टिटी का कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ. बिकॉज इफ अ वुमन इज हैविंग किड्स फ्रॉम मल्टीपल हस्बैंड्स, दिस मीन्स दैट आई एम नॉट श्योर इफ माई प्रॉपर्टी जिस बंदे बच्चे को जा रही है मेरी इस बीवी से, क्या वो इज the only my exclusive wife or not. So that was the rationale that early humans thought. So hence men thought that their wives should be chastised, should be virgin, and as such this basic concept of chastity of women or expectation of women to be loyal to the man developed because men wanted to transfer their private property to their own progeny. सेकेंड, इसमें लेवी स्ट्रॉस ने इसी के कॉन्टेक्स्ट को एक्सप्लेन करते हुए एक्सचेंज ऑफ वुमेन, जो उसकी किताब है उसके अंदर एक्सप्लेन किया कि ओवर टाइम जब हिस्ट्री प्रोग्रेस की तो वुमेन वर स्टार्टेड बीइंग ट्रीटेड एज कमोडिटी. इसको जिस तरह हमने ऑब्जेक्टिफिकेशन का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, आप कमोडिफिकेशन का कॉन्सेप्ट भी कह सकते हैं. कमोडिफिकेशन का कॉन्सेप्ट या कमोडिटी का कॉन्सेप्ट ये है कि समथिंग दैट इज वैल्यूएबल बिकॉज इट गेट्स सम मटेरियल बेनिफिट्स. तो औरतों को एज अ टूल देखा जाने लग गया फॉर मटेरियल बेनिफिट ऑफ मैन, फॉर देयर ग्रीड और फॉर देयर गोल फॉर अटेनिंग मोर पावर एंड मोर वेल्थ. कैसे? मैरिज अलायंसेस डिफरेंट ट्राइब्स में होने लगे. सो पुराने जमानों में ट्राइब्स के दरमियान अलायंसेस जब करने होते थे तो डिफरेंट ट्राइब्स के दरमियान शादी करवा दी जाती थी. सो वुमेन्स चॉइस डज नॉट मैटर बिकॉज द मेल हैड वांटेड टू अलाई हिमसेल्फ विद द किंग ऑफ अनदर एम्पायर, तो वो फिर उसकी बेटी से शादी कर लेता था. एंड दैट्स हाउ दे हैड अ वेरी परपेचुअल and long-lasting alliance. So that's one. Second, forcing women to participate in festivals, enforced prostitution and sex slavery. Game of Thrones reference, history के अंदर ये हमें it's replete with how women were treated inhumanly and they were prostitution और brothels और ये सारे establish हुए for male pleasure और male warriors के लिए, और औरतों को as a commodity बहुत जगहों पे treat करने जाने लगा. जब agricultural revolution आई और इंसान ने फार्मलैंड्स डेवलप की और रादर देन ट्रैवलिंग ऑल द वे टू इन सर्च ऑफ फूड, इंसान ने अपनी एक ही जगह पर रहते हुए बहुत ज्यादा फूड ग्रो करना सीख लिया. तो औरतों की रिप्रोडक्टिव एबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट हो गई और औरत का रिप्रोडक्टिव एबिलिटीज बिकेम एन इकोनॉमिक एसेट फ्रॉम मैन. व्हाई? बिकॉज मैन नीडेड पीपल टू मैनेज देयर फार्म्स एंड दे नीडेड फ्री लेबर फॉर दैट. चिल्ड्रन वर वन सच free labor. So because women could produce kids that men would then have managing their farmlands, so this meant that women's reproductive abilities become an important asset.
दिस मेंट दैट औरतों की आहिस्ता आहिस्ता सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी ये समझे जाने लगी या इन्फोर्स उनके ऊपर किया जाने लगा कि वो सिर्फ और सिर्फ बच्चे पैदा करें और बच्चों की परवरिश करें, जो बच्चे बाप के बाद में फार्मलैंड्स को मैनेज करें. एंड दिस वुड कीप ऑन कंटिन्यूइंग. सो दिस वाज द time when women were domesticated in particular at their own houses doing their nurture अपना जो है ना of their children rather than going out and work, खुद वो काम करें. So that's the second important instance that happened. इसके कॉन्टेक्स्ट में जब हिस्ट्री मजीद प्रोग्रेस की तो आहिस्ता आहिस्ता चूंकि सोसाइटी पेट्रियार्कल होती जाती रही, आहिस्ता आहिस्ता मर्दों की फेवर में चीजें होने लगी और मर्दों का पावर डेवलप होने लगी और औरतों को घर की चार दीवारी में धकेला जाने लगा और उनको सिर्फ बच्चे पैदा करने और बच्चों की परवरिश करने और काम से दूर किया जाने लगा. तो आहिस्ता आहिस्ता एक सोशल सिस्टम ही इस तरीके का बन गया वेयर men had economic, political and social power and women did not. Hence, consequently, legal codes establish होना जब शुरू हुए, लॉज बनना शुरू हुए, तो दे डिफरेंशिएटेड बिटवीन रिस्पेक्टेबल एंड नॉन रिस्पेक्टेबल विमेन फ्रॉम द आईज ऑफ मेन. हंस जितने फिर बाद में बड़े बड़े हिस्टोरियंस, एम्परर्स, हिस्ट्री लिखने वाले, स्क्राइब्स, स्कॉलर्स जितने आए वो ज्यादातर चूंकि मर्द थे, एंड एवरीथिंग इज रिटन फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ दोज हु आर इन पोजीशंस ऑफ पावर. तो जितने बिलीफ सिस्टम्स बने, हीरोज की स्टोरीज बनाई गई, एक्सप्लेनेशन सिस्टम्स बनाए गए, कल्चरल बिलीव्स, लीगल कोड्स, पॉलिटिकल सिस्टम्स, वो मर्द के पर्सपेक्टिव से बनाए गए और मर्द की पावर को इंट्रेंच करने के लिए बनाए गए, विच लार्जली एक्सक्लूडेड विमेन. हेंस जेंडर रोल्स आहिस्ता आहिस्ता फिक्सेट होने लग गए और पेट्रियार्की बिकेम फर्मली इनग्रेन्ड within the fabric of society through these chain of historical events that I've just explained to you. The second theory that complements this concept of social construction of gender, that how gender is a concept that is socially constructed and not biologically determined, is the concept of ethnomethodology and symbolic interactionism. It's a very simple concept. The idea is that different interactions की वजह से और सोशलाइजेशन की वजह से लोग डिफरेंट आइडेंटिटीज और डिफरेंट बिहेवियर्स अपने डेवलप करते हैं. एंड मेन एंड वेमेन बेसिकली लर्न देयर रोल्स इन सोसाइटीज एज दे ग्रो ओल्ड. सो सोशलाइजेशन जो एजेंट्स हैं वो दोनों जेंडर्स को, दोनों सेक्सेस को डिफरेंटली सोशलाइज करते हैं. किस तरीके से? अगर आप पेरेंटिंग लेवल पे देखें तो बच्चों के नाम जिस तरीके से रखे जाएंगे, जिन खिलौनों के साथ वो खेलेंगे, जो लेबल्स उनके साथ एसोसिएट किए जाएंगे. सो अगर एक लड़का रोता है तो उसको कहा जाता है टू मैन अप, दैट मैन डोंट क्राई. फॉर इंस्टेंस अगर बहनों और भाई में झगड़ा होता है तो लड़की को बोला जाता है कि बॉयज विल बी बॉयज. या जनरली सोसाइटी में जो टर्मिनोलॉजी यूज की जाती है कि लड़कों ने तो सुधरना नहीं है, तो हाउ अबाउट यू कॉम्प्रोमाइज. तो औरत को इट इज टॉट टू बी कॉम्प्रोमाइजिंग एंड मेन आर नॉट taught to take that responsibility and ownership. स्कूलिंग के अंदर फॉर इंस्टेंस आपको जिस किस्म का करिकुलम पढ़ाया जाता है, स्पोर्ट्स आपकी डिफरेंट होंगी. मर्दों की स्पोर्ट्स ज्यादा एथलेटिक, ज्यादा एनर्जेटिक होंगी, which will give them a sense of authority and power and domination. और औरतों की स्पोर्ट्स ज्यादा फेमिनिन होंगी. इस तरह दूसरी एक्टिविटीज भी in such a fashion will be designed from this perspective. फिर peer groups के अंदर क्या होता है? Peer groups are your colleagues, your cohorts, your friends, your professional colleagues. तो जनरली फिर इन नॉर्म्स के साथ कंफर्म करने का प्रेशर उनकी तरफ से भी आता है. सो फॉर इंस्टेंस जब बच्चे स्कूल में जाते हैं तो जो लड़कियां होती हैं, एक लड़की को दूसरी लड़कियों का इन्फ्लुएंस होता है कि इफ अदर गर्ल्स आर कंफर्मिंग बेटर टू देयर रोल एंड गेटिंग सोशल अप्रिसिएशन फ्रॉम देयर फ्रेंड्स, फ्रॉम देयर टीचर्स, फ्रॉम देयर पेरेंट्स. एक लड़की जो बहुत खूबसूरत है और बड़ी वो तैयार होके आती है, शी गेट्स अ लॉट ऑफ praise from and attention from others, and she get a lot of praise from the parents and from teachers. So at a young age this might give an impression to other girls that this is something that is ideal for us. तो इसलिए वो भी फिर उस तरीके से एक्ट करने लग जाते हैं. इसी तरह वो लड़का जो बहुत माचो है, बहुत मैनलीनेस और मैस्कुलिनिटी उसकी इज ओजिंग आउट, तो एंड ही इज वेरी लाइट बिकॉज ऑफ दिस, तो इसकी वजह से फिर बाकी लोगों को लगता है दिस इज द स्टैंडर्ड दैट वी नीड टू कंफर्म टू. सो एक पीयर प्रेशर का भी एलिमेंट इसके अंदर आ जाता है. फिर मीडिया पोर्ट्रेल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली एवर सिंस दिस इंफॉर्मेशन एज एंड टेलीविजन. मगर उससे पहले भी जिस तरीके से नॉवेल्स लिखे जाते हैं, जिस तरह की स्टोरी सुनाई जाती थी, फिर पॉपुलर कल्चर में जिस तरीके से रिप्रेजेंटेशन औरतों और मर्दों की जाती है, हीरोज, पॉलिटिशियंस, वो एक आइडियल जेंडर का कॉन्सेप्ट डेवलप करते हैं.
तो ये आइडिया कि चूंकि मर्दों ने जनरली टीवी पे अपनी सोसाइटी में ज्यादा मर्दों को पॉलिटिशियंस के रोल में देखा है, तो ऑटोमेटिकली इसकी मिसाल ये बड़ी अच्छी बन जाती है कि बहुत सारे लोग फिर कंसिडर करते हैं कि मर्द मेक आइडियल पॉलिटिशियंस एंड वुमेन डोंट, प्रिसाइसली एंड सिंपली बिकॉज द फैक्ट कि उनकी जिंदगी में विजिबिलिटी ज्यादा रही है ऑफ वॉचिंग मेल पॉलिटिशियंस, हेंस दे थिंक दैट ऑल पॉलिटिशियंस शुड बी मेल, या जनरली उनको मर्द पॉलिटिशियंस को वो प्रेफर करते हैं. सो दीज आर ऑल द थिंग्स इन हाउ पीपल एंड लर्न देयर जेंडर्स. फिर इसी तरीके से सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस होते हैं. तो जो सोशल बिहेवियर एक्सपेक्ट किया जाता है मर्द से और औरत से डिफरेंटली, अगर वो अपने अपने अप्रोप्रिएट एक्सपेक्टेड सोशल बिहेवियर से कंफर्म नहीं करते, फॉर इंस्टेंस इफ अ वुमन वांट्स टू ब्रेक आउट ऑफ दैट सोशल एक्सपेक्टेशन एंड वांट्स टू बी मोर brave, more outgoing, more adventurous, defy the norms, then she will be labeled rebellious, she will be called different names, तो उसको condemnation का सामना करना पड़ेगा. While a woman who conforms to these roles will be appreciated, and the same is true for how men are expected to do. So for instance, इसमें एक बड़ी important ये एक अच्छी illustration है कि why boys are not expected to play with dolls and women not expected to play with cars and trucks. तो gender roles को reverse कभी क्यों नहीं किया? तो हमेशा से चूंकि एक ही तरह से बचपन में ट्रेनिंग उनकी डिफरेंट तरीके से की जाती है, that is why they develop different personalities. इसमें जूडिथ बटलर का कॉन्सेप्ट जेंडर परफॉर्मेटिविटी का आता है, डूइंग जेंडर. शी बेसिकली आर्ग्यूज दैट किसी का भी एक जेंडर या दूसरा जेंडर नहीं होता. हम इस तरीके से बोलना पड़ता है, द सोसाइटी एक्सपेक्ट्स